سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ گرمی سے ستائے عوام کے لیے محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 30 جون کے دوران شہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری۔ کم سے کم درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی نوید سنا دی گئی۔ 25 سے 30 جون تک لاہور سمیت پنجاب کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ پری مونسون بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات سے 30 جون کے دوران شہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث 26 اور 27 جون کو شہر کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور تیسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 161 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں شدید گرمی نے 3 افراد کی جان لے لی۔ 18 سالہ نوجوان نشے کی زیادتی کے باعث دم توڑ گیا۔ داتا دربار پناہگاہ میں 32 سالہ شخص گرمی کی شدت کے باعث جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی شناخت واجد علی کے نام سے ہوئی ہے، جو خیبر پختونخوا کا رہائشی تھا۔ لاری اڈا کے علاقے میں 57 سالہ شخص گرمی برداشت نہ کر سکا اور دم توڑ گیا۔ کوٹھا پنڈ میں 78 سالہ خاتون بھی گرمی کی شدت برداشت نہ کر سکی اور چل بسی۔ ایدھی ترجمان کے مطابق جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت 78 سالہ نسیمہ کے نام سے ہوئی ہے۔ گلبرگ کے علاقے کلمہ چوک کے قریب 18 سالہ نوجوان عبدالرزاق نشے کی زیادتی کے باعث دم توڑ گیا۔ شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ تکنیکی خرابیوں اور ٹرانسفارمر جلنے سے متعدد علاقے رات بھر بجلی سے محروم رہے۔ شہری بلبلا اٹھے۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ شدید گرم موسم میں بھی لیسکو کا ترسیلی نظام جواب دے گیا۔ سسٹم اوور لوڈ ہونے سے شہر کے مختلف علاقوں میں رات بھر بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ سٹاف کی کمی کے باعث شکایات کا بروقت ازالہ ممکن نہیں رہا۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور بیمار شہری شدید اذیت میں مبتلا۔ بجلی کی طویل بندش کے باعث پانی کی بھی کمی کا سامنا۔ شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے شہری نڈھال، شادرہ، فیصل ٹاؤن، رائے ونڈ، فیروز پور روڈ، دھرمپورہ، گڑی شاہو میں رات بھر بجلی بند رہی۔ غازی آباد، گجمتا، جوہر ٹاؤن، آرے بازار، علی پارک کے علاقے بھی بجلی سے محروم رہے۔ بھٹا چوک، ڈیفنس، مزنگ کے مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمر جلنے سے رات بھر بجلی کی بندش رہی۔ گرمی بڑھتے ہی بجلی کی طلب 5500 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ NPCC کی جانب سے لیسکو کو 4800 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ لیسکو کو 700 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا۔ لیسکو نے شہر میں 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری کیا۔ شیڈیول کے برعکس مختلف علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری۔ بڑھتا درجہ حرارت، محکمہ موسمیات کی ہیٹ ویو وارننگ جاری۔ ضلع انتظامیہ نے ہیٹ ویو سے بچاؤ کے جامع پلان پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ شہر بھر میں 300 سے زائد مفت واٹر پوائنٹس لگائے جائیں گے۔ مفت واٹر پوائنٹس مہم کے لیے DG فوڈ اتھارٹی اور DC لاہور کی معروف واٹر کمپنیوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ DG فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کا کہنا ہے، واٹر کمپنیاں فلاحی منصوبے کے تحت ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے واٹر کیمپ لگائیں گی۔ DC لاہور رافعہ حیدر کا کہنا ہے، صاف پانی کی وافر فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بحالی بھی کروا رہے ہیں۔ تعمیراتی منصوبوں، بس سٹاپ سمیت تمام رش والی جگہوں پر مفت واٹر پوائنٹس لگائے جائیں گے۔ اب بات کریں مویشی منڈیوں کی۔ لاہور کی مویشی منڈیوں میں بھی مہنگائی کے ڈیرے ہیں۔ جانوروں کی خریداری کے لیے منڈیوں کا رخ کرنے والے شہری مہنگائی کا شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ کی آمد۔ شہر میں مویشی منڈیاں سجی ہیں۔ گائے، بکرا، اونٹ، ایک سے بڑھ کر ایک جانور بھی ہیں، لیکن قیمتیں آسمانوں پر۔ مہنگائی کی وجہ سے جہاں ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، وہیں قربانی کے جانور خریدنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت قیمتوں میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ بیڑا خریدنے آئے ہیں، لیکن ریٹ بہت زیادہ ہیں جو ہماری رینج سے اونچے ہیں، اور بچوں نے شوق کیا تھا کہ ہم بھی آ جائیں، لیکن گرمی اتنی زیادہ ہے اور ریٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ بیڑا خریدنے آئے ہیں جو کہ مل ہی نہیں رہا۔ پوری منڈی پھر رہی ہے لیکن ملا نہیں ہے، اور گرمی اتنی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا، نہ ادھر پانی ہے نہ کچھ ہے۔ شدید گرمی میں کچھ کمانے کی غرض سے منڈیوں میں ڈیرے لگائے بیٹھے بیوپاری مرضی کی قیمتیں نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ ان کو ہم نے ہر چیز دیتے ہیں جو ان کے موسم کے مطابق انہیں ان چیزیں دیتے ہیں، جو بھی انہیں دیسی وانڈ دیتے ہیں، انہیں گھی وغیرہ دیتے ہیں، کریم وغیرہ دیتے ہیں، اور گرمیوں میں ہم انہیں تیل وغیرہ دیتے ہیں، تیل اور دہی دیتے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے مشکلات تو آڑے آ رہی ہیں، لیکن استطاعت رکھنے والے شہری سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے پرعزم ہیں۔
उधर लखोडेर मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान, व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशान। इंतजामिया ने भी चुप साध ली। व्यापारी कहते हैं कि यहाँ पर टेंट, पानी, ना ही बिजली है, वॉशरूम की भी सहूलत मुयस्सर नहीं। माफिया जानवर खड़े करने के पैसे मांग रहा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडियां सज गईं। लखोडेर मंडी में सहूलियात की अदम दस्तयाबी, व्यापारियों और खरीदारों की परेशानी बढ़ गई। लखोडेर मंडी में टेंट लगाए गए, ना ही पानी दस्तयाब है, बिजली भी गायब, वाशरूम की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। इंतजामिया की जानिब से सहूलियात ना होने के बराबर हैं। व्यापारियों का कहना है कि सहूलियात ना मिलने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। माफियाज जानवर भी खड़े करने के लिए पैसों का तकाजा कर रहे हैं। जो भी बंदा आते हैं, एक नहीं आते, दो नहीं आते, तीन आते हैं, बार बार आती हैं। जो एक कहते हैं मेरा जगह है, दो कहते हैं त्रिया मेरा जगह है। पैसे के लिए हमारा भी वो प्रॉब्लम है। पानी का तो पहले भी बंदे ने बताया, हमारे दोस्ती ने, पानी का प्रॉब्लम है, बाथरूम का प्रॉब्लम है, यही मसले बात है। सहूलियात के लिए मेरे ज़्यादा तकलीफ है। क्या होगा, ऊपर से गर्मी है तो नीचे पानी का भी बंदोबस्त नहीं है। पानी जो इधर से अभी देखो ना, ये गन वगैरह जो पड़ा है ना, इधर से नीचे 70 फुट हम बोर कर रहे हैं, तो बोर का पानी इसी तरह आते हैं ना, बिल्कुल पीला, अभी माल को पीने को भी नहीं है। न नमाज का कोई सहूलत है, न वज़ू बनाने का कोई सहूलत है। तो माल मवेशी का तरपाले टेंटे भी नहीं दिया, ना बाथरूम है। व्यापारियों का मजीद कहना है कि इंतजामिया मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पर लगाने के लिए भी 50 रुपये वसूल करती है। आला हुकाम नोटिस लेकर सहूलियात फराहम करें। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के मवेशी मंडियों के अचानक दौरे, ACT और मेट्रोपॉलिटन अफसरान मौके पर तलब कर लिए गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने सगियां फूल मंडी और इमामिया कॉलोनी मवेशी मंडियों के दौरे किए और व्यापारियों से मसाइल दरियाफ्त किए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है लाहौर डिवीजन की हर मंडी टैक्स फ्री है, इंतजामात बड़ी हद तक काबिल इत्मीनान है। तमाम डायरेक्टर्स लाइव स्टॉक को अहकामात जारी किए गए, कोई जानवर बीमारी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। परदेसियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे का ईद के तीनों रोज़ ट्रेनों के किरायों में कमी का ऐलान। तमाम पैसेंजर ट्रेनों के किरायों में 33% रियायत दी जाएगी। रेलवे इंतज़ामिया ने ट्रेनों के किरायों में 33% रियायत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम डिवीजनल सुपरिटेंडेंट्स को मरासला जारी, किरायों में कमी का ऐलान वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की हिदायत पर किया गया। ईद के तीनों दिन तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस की टिकटों पर रियायत दी जाएगी। रियायती किरायों का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। वुमेन चैम्बर के ज़ेर-ए-तमाम ईद गाला में एहलिया निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नुमाइश को शानदार करार दिया। ख़वातीन के लिए खुसूसी इक़दामात को सराहा। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट देखिए। विमेन चैम्बर लाहौर के ज़ेर-ए-तमाम मुकामी होटल में ईद गाला का एहतमाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब की अहलिया वर्दा अशरफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। ईद गाला में सजे मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहलिया मोहसिन नकवी वर्दा अशरफ ने कहा कि ख़ातीन के लिए अच्छी नुमाइश है, तमाम चीज़ों की मुनासिब कीमतें हैं। निगरान वज़ीर आला की मसरूफियत बारे भी बताया। उनसे डरने के सवाल पर मुस्कुरा दी। हमें जब बतौर सहाफ़ी थे तब भी नज़र नहीं आते थे और अब तो बिल्कुल नज़र नहीं आते। नहीं। ईदगाह में शरीक ख़वातीन ने नुमाइश को शानदार करार दिया। जो ख़वातीन घर बैठ के काम कर रही हैं उनको मौका दिया जाए कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिधर आके वो अपने काम को करे। इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, बेसिकली ये मार्केटिंग, ब्रांडिंग और नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे इसी से वी नीड हमें रिकग्निशन मिलती है कि हम जो है ना अपने प्रोडक्ट को जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह कम्पीट करवा सकते हैं। ईदगाह में कपड़ों, ज्वेलरी, पेंटिंग, अशिया खुर्दनी समेत मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश की गई। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात एक दिन में नहीं हुए, 3.5 बरसों में बहुत ज़्यादा कर्ज लिया गया। पंजाब की हालत भी अबतर थी। मुल्क की सन्नत चलेगी तो रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और मईशत बेहतर होगी। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग के लिए मेड इन पाकिस्तान नुमाइश। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। 2 रोज़ा नुमाइश में 100 से ज़ायद स्टॉल्स सजाए गए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने मेड इन पाकिस्तान नुमाइश को खुशाइन करार दिया और कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात एक दिन में नहीं हुए। 2018 में हम 24वीं बड़ी मईशत, 2023 में 45वें दर्जे पर हैं। ये फ़र्क गैर मामूली है। मुल्क की सनत चलेगी तो रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और मईशत बेहतर होगी। 2018 में
पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था और अगले कुछ सालों में जो दुनिया के फाइनेंशियल एनालिस्ट थे वो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में आने का बहुत कवी इम्कान है। यानी टॉप जो G20 कंट्रीज़ होते हैं उनकी अपनी एक यूनियन भी होती है, अपनी एक फोरम भी है, प्लेटफॉर्म भी है जिस पे बैठ के वो बात करते हैं। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर और सदर गुजरात चैम्बर सिकंदर इशफाक का कहना था कि मौजूदा माशी, तिजारती और सनती हालात मुश्किलात का शिकार हैं। इन हालात में मेड इन पाकिस्तान नुमाइश इक्तसादी हालात को बेहतर बनाने में अहम है। मुल्की सनतों को फरोग देने के लिए हम सबको मेड इन पाकिस्तान की तरफ ही जाना होगा। कोई भी एग्जीबिशन करे, लोकल प्रोडक्ट्स की करे और उसको अब ये नाम ही ये रखना चाहिए मेड इन पाकिस्तान, ताकि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। हमने ऑनलाइन भी काफ़ी रजिस्टर किया लोगों को, वहाँ से काफ़ी लोगों ने इस बार में स्पेशली इस चीज़ को लेके कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए बिज़नेस को कैसे प्रमोट किया जाए पाकिस्तान में, स्पेशली वो लोग जो अपना बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर मेड इन पाकिस्तान नुमाइश एक्सपो फौजिया तबस्सुम ने बताया कि नुमाइश में टेक्सटाइल, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक बाइक्स, रियल एस्टेट समेत कॉस्मेटिक्स और दीगर मसनूआत सजाई गई हैं। निगरान पंजाब हुकूमत का एडवोकेट जनरल पंजाब की तैनाती से मुतल्लिक अहम फैसला। निगरान पंजाब हुकूमत ने शानगुल का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। खालिद इसाक को एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया गया। महकमा कानून पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिन्ना हाउस हमले में डिस्चार्ज करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत और इस हवाले से अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच हुकूमती अपील पर 26 जून को समाअत करेगा। पंजाब हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है। हुकूमती अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अपील में इस्तदा की गई है कि साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का अदालती फैसला कलअदम करार दिया जाए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं मिलिट्री कोर्ट का केस सुनने वाला बेंच मतनाज़े है। अगर खिलाफ फैसला आया तो अमल दरामद करना मुश्किल होगा। अदालत 9 मई के जिम्मेदारों को अपना कंधा ना दे। चेयरमैन PTI 9 मई के वाक़यात का मास्टर माइंड है। आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन बागबानपुरा में कौमी यकजहती के हवाले से खसूसी सेमिनार। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की खसूसी शिरकत। उनका मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि 9 मई को ट्रैफिक का इशारा नहीं टूटा बल्कि शोहदा की यादगारों और आर्मी तनसीबात पर हमला हुआ। चेयरमैन PTI वाकयात का मास्टर माइंड है। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में ही होंगे। मिलिट्री कोर्ट्स केसेस का बेंच मुतनाज़े है। उसके फैसले पर अमल दरामद भी मुश्किल होगा। पहले नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोट पर फैसला होना चाहिए। ये कोई ट्रैफिक का इशारा नहीं टूटा, ये शोहदा की यादगारों पे हमला हुआ है, शोहदा पर हमला हुआ है। और ये कहकर कि जी ये आर्मी कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, सिविलियंस जब आर्मी की तनसीबात पे शोहदा पे हमला करेंगे, उनके घर जाके उसके अंदर घुस के, तो फिर उसी कानून पर ट्रायल होगा। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि पंजाब में हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। सर्वे के मुताबिक 144 में से 125 सीटों पर नून लीग आगे है। जरदारी साहब 10 की बजाय 25 दिन लाहौर में रहे। नेशनल असेंबली की सीट्स पर 125 सीटों पर नून लीग जो हमने सर्वे करवाया उसमें कहीं आगे है। सो सबको सियासत का हक है, जरदारी साहब को भी सियासत का हक है। हम तो लाहौर में उन्हें वेलकम करते हैं, बल्कि अगर वो 10 दिन रहते हैं तो वो 20-25 दिन रहा करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सेमिनार में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट, सलमा भट्ट, नून लीग टीचर विंग के सरबराह मोहम्मद मुजम्मिल और DPI कॉलेजेस ने भी खिताब किया। आपको बताएं कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने का सिलसिला ना रुक सका। टमाटर, अदरक और लीमू समेत 8 सब्जियों और एक फल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। तफसीलात देखिए अब्दुल कादिर की रिपोर्ट में। महंगाई के बार सरकारी कागजात में भी लगातार मार्केट कमेटी सब्जी मंडी ने सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए। टमाटर 5 रुपए, अदरक 15 रुपए, लीमू 25 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। मार्केट में टमाटर 80 रुपए, लीमू 250 रुपए, जबकि अदरक 880 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। दीगर मौसमी सब्जियों में भिंडी, शिमला मिर्च 10 रुपए महंगी, अरवी, गाजर और घिया तोरी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया है। प्याज 80 रुपए किलो, जबकि लहसुन 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया
किया जा रहा है। फलों में आलू बुखारा 330 रुपए, खुबानी 250 रुपए और आड़ू 330 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगे। ब्रायलर की खपत कम होने से दाम 633 रुपए किलो और अंडे 246 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए हैं। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। निगरान पंजाब हुकूमत का इंपोर्ट बिल कम करने के लिए अहम इकदाम कैनोला, सनफ्लावर और दीगर तेलदार फसलों का ज़ेर काश्त रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर ज़रूरी तरजीहात का तयन ज़रूरी है। लियाकत अली रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में तेलदार फसलों की काश्त बढ़ाने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए कैनोला, सनफ्लावर और दीगर तेलदार फसलों के लिए ज़ेर काश्त रकबा बढ़ाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। मोहसिन नकवी का जाली और मिलावट शुदा ज़रूरी अद्वियात के खिलाफ मुहिम जारी रखने का हुक्म। कमिश्नर मुतालिका डिवीजन में जाली पेस्टिसाइड्स के खिलाफ जारी मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगे। गंदम के ज़ेर काश्त रकबे की बजाय पैदावार बढ़ाने की मौसर हिकमत अमली मुरतब करने पर इतफाक किया गया है। इजलास में ज़राई मशीनरी पर मजीद सब्सिडी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई माहिरीन का ड्रिल मशीन के जरिए फसलों की काश्त पर इतफाक। सूबे में IT बेस्ड कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम के आगाज का फैसला भी किया गया। कॉटन कैंपेन एडवाइजरी सर्विस के लिए सूबे भर में 2000 इंटर्न ज़राई ग्रेजुएट्स की खिदमत ली जाएंगी। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि कपास की पैदावार का हदफ हर सूरत हासिल करने के लिए स्टेक होल्डर्स को भरपूर काविशें करना होंगी। इजलास को ब्रीफ किया गया कि स्पार्को की मुआवना से कपास की फसल के सैटेलाइट इमेज हासिल किए जाएंगे। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत सूबे भर में महकमे खुराक 45 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकम्मल न कर सका। 39,21,000 टन गंदम की खरीदारी की जा सकी। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। महकमा खुराक पंजाब ने सरकारी गंदम की खरीदारी बंद कर दी। सेक्रेटरी फूड मियां जमान वट्टू का कहना है कि गंदम खरीदारी बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। खरीदारी मुहिम के दौरान 39,21,000 टन गंदम खरीदी गई। गंदम खरीदारी का आगाज 2 अप्रैल से किया गया था। महकमा ने 1,10,000 किसानों में 44,48,000 टन बारदाना तकसीम किया। खरीदारी मुहिम में बहावलपुर डिवीजन ने 8,54,000 टन गंदम खरीदारी का हदफ पूरा किया। लाहौर डिवीजन से 3,43,000 टन गंदम खरीदी गई। ओपन मार्केट को फ्लोर मिल्स की गंदम खरीदारी के लिए ओपन कर दिया गया है। महकमा खुराक के मुताबिक गंदम की कीमतों में कमी का इम्कान है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। बात करें बदलते मौसम की। सुबह सवेरे सूरज की तपश की वजह से हब्स में इजाफा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। PDMA ने आज से 30 जून तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी है। अहवाल जानेंगे सामिया सईद से। बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो यही देखा जा रहा है महकमे मौसमियात की जानिब से आज शहर लाहौर में बारिश की पेशगोई कर रही है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासुब की तो वो 70% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज से 30 जून तक पंजाब के बलाई और वस्ती इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ प्री मानसून बारिशों की पेशगोई भी की जा रही है। आज से यही देखा जाएगा कि गर्मी की लहर जो है उसमें हमें कमी ही नजर आएगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरतूब हवाएं बहीर अरब से मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। न सिर्फ ये वाली हवाएं, मगरिबी हवाएं जो हैं उनका सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। मगरिबी हवाएं भी मुल्क में दाखिल हो रही हैं। आज से 30 जून के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चेकवाल, नारोवाल, फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बास मकामात पर तेज आंधी की भी पेशगोई की जा रही है। PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDMA की जानिब से यही बताया जा रहा है कि मरी में जो है वो लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मूसलाधार बारिश से 27 जून को DG खान में सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। मुसाफिर और सियाह हजरात खराब मौसम में नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मुहतात रहें। ये भी कहा जा रहा है कि किसान हजरात मौसमियाती पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए अपने ज़राई मामला तरतीब दें। आंधी और शदीद बारिशों के बाइस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिजली के खंभे, सोलर पैनल वगैरह को भी नुकसान पहुंच सकता है। PDMA की जानिब से मजीद कहा जा रहा है शहरी हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें।
سامیہ سعیدہ حوال بتا رہی تھی، آپ کا شکریہ۔ ریسکیو 1112 کی بیسک 41 پاسنگ آؤٹ پریڈ میں صوبائی وزیر ایس ایم تنویر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں کیڈٹس کی فیملیز نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مبین حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں بیسک 41 کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب، نگران صوبائی وزیر ایس ایم تنویر کی بطور مہمان خاص شرکت۔ ریسکیور سے سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر نے حلف لیا۔ ریسکیو کیڈٹس نے ڈیزاسٹر رسپانس اور زندگی بچانے کی عملی مہارتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر نگران صوبائی وزیر ایس ایم تنویر نے پاس آؤٹ ہونے والے ریسکیور کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا کام لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس اکیڈمی نے 24,000 سے زائد لوگوں کی تربیت کی۔ پنجاب گورنمنٹ کی ہر طرح کی سپورٹ حاضر ہے۔ بہت خوشی ہوئی دیکھ کر کہ آپ کی جو اکیڈمی ہے، انہوں نے 24,000 بچے اب تک ٹرین کیے ہیں، اور یہ فرسٹ سرٹیفائیڈ اکیڈمی ہے جو UN سے سرٹیفائی کیا گیا پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے پہلی بار۔ تو بہت بہت آپ کو مبارک۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا کہ ریسکیور لوگوں کی مدد کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ ایمرجنسی سروس اب تک 1,27,00,000 لوگوں کو سروس فراہم کر چکی ہے۔ عالمی معیار کی تربیت اور سرٹیفکیشن کی وجہ سے ہم ترکیہ میں فوری رسپانس کر سکے۔ ہماری UN سرٹیفکیشن ہوئی اور ہماری سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم پاکستان کی پہلی ٹیم تھی جنوبی ایشیا میں جس کو سرٹیفکیشن ملی۔ اسی کی وجہ سے ہم نے ترکیہ میں بھی جب ارتھکویک آیا، زلزلہ آیا اور وہ بے بسی تھی، اس وقت ہم نے فوراً رسپونڈ کیا۔ اگلے دن وہاں پہ تھے ٹیم، اور یہیں سے ہماری جو ٹیم گئی اس نے جا کے وہاں پہ نہ صرف 15 لوگوں کو زندہ ریسکیو کیا بلکہ تقریباً 150 بلڈنگوں کو جو ہے ہم نے سرچ کیا، اور 250 لوگوں کو تقریباً باڈیز کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ صوبائی وزیر ایس ایم تنویر نے ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں مختلف تربیتی سٹالز کا مشاہدہ کیا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 239 مرد اور 28 خواتین شامل تھیں۔ پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا کیس، احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو مقدمے میں بری کر دیا۔ احتساب عدالت کے جج راؤ عبدالجبار نے کیس پر فیصلہ سنایا۔ پروسیکیوٹر حارث شفیق قریشی اور حافظ اسد اللہ عوان نے دلائل دیے۔ گزشتہ سماعت پر فریقین کی جانب سے دلائل مکمل کیے گئے تھے۔ میاں نواز شریف پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے کیس میں اشتہاری تھے۔